Indian history. Modern Indian history. This is the significant part over there. और themes 360 degree की अगर बात करते हैं, what way you should have to apply to the part of 360 degree. If you go through, and the major topic regarding this one is what? The important governor generals. The important governor generals. Important governor generals and viceroy. So this is one of the significant facets you should have to keep under this domain over there. मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ important governor general viceroy के बारे में, that is important part. और इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड सवाल होंगे, और जो सवाल होंगे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, 360 डिग्री 360 degree approach you should have to consider. The first thing is that regarding this one is that you have to keep in your mind is that political. The approach should be what? Political. The approach should be what? Social. Then it is what? Economic. Then it is what? Cultural. Apart from the cultural, it is what? Relevance to the present time is the another part of that relevance. And the third thing is regarding that achievements and any part of that their contribution. One more thing regarding that I want to say to you regarding this one in this connection is what? In this connection I would like to make you very much clear regarding that what exactly the thing it is that it is the relevance of the present time. It is the relevance of the present time. हमेशा यूपीएससी के लिए एक चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूपीएससी के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सबसे बड़ा डायनामिक फोर्स क्या है, उसका रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में क्या है. There are a lot of question arose from the candidates that what are the relevance to study about the ancient history, medieval and modern. So relevance is very major important facet over there. If you go through the section of the modern history regarding the UPSC last year question and last year question regarding that, the topic has been asked from what? It is the question of 1905. This was the timeline, and this is what? This is the major happening done by whom? It is by Lord Curzon. Lord Curzon. And if you introspect about this topic, Lord Curzon, you have to pick up this thing as a theme of personality. As a theme of personality. What way he contributed to the Indian counterpart and what activities he performed over there. That is significant part over there. Is conditions mein this is a significant part over there. If you talk about contribution, if you talk about the other facet part of that, that is important thing regarding this one. This way we can go further and further. As I told you that the 360 degree angle is the one of the basic facet over there, and under this facet you should have to carry this topic. Now come to the main point over there. So I am going to start with this too. Now the clarity must be there with you. What is that? The role of Governor General, Viceroy, for what? For structuring, for making, architecting the Indian, you can say. So imperialism and another part of that, structuring, what we can say, the politico-administrative system of the British rule in India. This is the main motive behind that. If you keep this thing in your mind that politico-administrative system in India, since the time of the Governor General has came to prominence over here, you should have to segregate this thing under the two sections. You have to segregate the things under the two sections simply. The first section should be the period of colonialism. Colonialism, or you can say colonial rule. It is what? Colonial rule. And another facet is what? After the period of 1858. It is what? Imperialism. Imperialism. And imperialism leads to the idea of what? Anti-imperialist struggle. It is what? It is anti-imperialist struggle.
anti-imperialist struggle. This is one of the significant part of that. And it is the sense of what anti-colonial rule. You have to make the division. आपको दो भागों में बांटना होगा. क्लियर कट समझ लो आप इस चीज को. पहली चीज क्या है, 1757 से 100 साल का जो पीरियड है 1857 का, it is what anti-colonial activity, all the you can say sporadic movement, that is the movement of the peasant movement and other movement, socio-religious reform movement, that is another facet over there. And it was the impact of British administrative policy of 100 years of history. Okay, and after that the situation were changed, and this situation tend to the idea of what? It was anti-imperialist struggle. Anti-imperialist struggle का मतलब क्या हुआ? साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन. ये शुरुआत होती है 1858 के बाद से. तो this is the second part of that. This is the significant. And in this part, I am going to pinpointing the things, the role of Governor General and Viceroy. This thing I am going to be discussed to you, because if you stratify the section of the paper from 2013 to the recent time, and even though to the more than, you can say, the section of, you can say, other part of the section that is over the period of, you can say, 10 or 15 years before that 1913. तो this is another important facet over there. तो कुल मिला के अगर 20 साल के भी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हो, देखते हो, you can find that the role of Governor General and Viceroy play a very very crucial, a very very significant role over here. तो आइए मैं चर्चा करता हूं इसको. आप कागज कलम लेकर के तैयार रहो. अगर आपके कोई सवाल आते हैं उसके भी मैं जवाब दूंगा. Be ready for that too. Now come to the main aspect over there. So begin with the ideas of what? Begin with the ideas of Governor Generals during the British India. Governor Generals during the British India, if you talk about before 1713 onward, so the first person who came to India with a significant aspect was that it was Robert Clive. Robert Clive की चर्चा करते हैं. That is important part over there. The founder of the British Indian Empire, popularly known as Lord Clive. यहाँ से आपका यूपीएससी का एक सवाल शुरू होता है. अगर सवाल किया जा सकता है कि कौन सा ब्रिटिश एम्पायर फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है, तो द थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट. इट वाज लॉर्ड क्लाइव, एंड ही वाज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री लीडर, एंड टू थिंग्स आर एसोसिएटेड विद दिस पर्सनालिटी. अभी जो मैंने पर्सनालिटी की बात की, उसकी विशेषता क्या नजर आती है? एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है और दूसरा क्या है? मिलिट्री लीडर है. और यहीं से इसकी जो कहा जाता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरी तरह से भारत में डोमिनेटिंग रोल अदा करता है. सो दिस थिंग शुड नॉट बी फॉरगेट ओवर देयर. सो लॉर्ड क्लाइव रूल इज वेरी प्रोमिनेंट ओवर देयर. सो दिस वे इट लीड्स टू द आइडिया ऑफ थीम एज ए पर्सनालिटी एंड द मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैज बीन एनेक्टेड बाय हिम. और जो उसकी विशेषता आती है कि किस प्रकार से शासन पद्धति को उसने चलाया, किस प्रकार से शुरू किया. क्योंकि उसकी योग्यता की बात करते हैं तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था, और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ही साथ क्या देखते हैं? एक कुशल, कहा जा सकता है, सैन्य नेतृत्व वाला आदमी था. यानी मिलिट्री कैपेसिटी भी उसके पास थी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसके पास स्किल था. दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हिज पर्सनालिटी ओवर देयर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही वाज आइडेंटिफाइड एज द फाउंडर ऑफ व्हाट वी कैन से founder of the British rule in India. That is why it was called over there. And what is important thing, he has in various capacities for the British East India Company, and he was the Governor General of Bengal before Regulating Act 1773. Regulating Act का mechanism तब से शुरू होता है. Regulating Act का मतलब क्या होता है? What way the control mechanism of the administrative system by a lawful act of the British started over there. That is called regulating. का मतलब क्या है? किसी चीज को नियंत्रित करना, किसी चीज को रेगुलेट करने की व्यवस्था शुरू होती है. तो एक सवाल और आपका पीटी का बन के निकल जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब से शुरू हुआ, किसके काल में शुरू हुआ, और उसका इम्पैक्ट या फिर कह सकते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या था. तो दिस वे यू कैन मेक द लिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग which actually marks the beginning of the British rule. अगर कहा जाए कि अगर यूपीएससी सवाल पूछता है, और हमेशा याद रखना होगा कि यूपीएससी के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं.
क्वेश्चन का लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए ये बात यहाँ कही गई है, या ये चीज की व्याख्या मैं करना चाहता हूँ. व्हाट इज दैट? Beginning of the British rule, which actually marks the beginning of the British rule. It is by regulating act, and regulating act what? It is regulating mechanism how to administrate the system for the ideas of East India Company. Another important part is that he was involved in the Battle of Plassey. Another significant transformation has taken place is that Battle of Plassey, and the consequent of annexation of Bengal started dual administration in Bengal. Again, the period is 1765 to 1772, and the practice was stopped by Warren Hastings, और जो practice था Warren Hastings द्वारा वो stop किया जाता है. This is the thing you should have to understand about that. Another significant feature what we find regarding this one, civil services were organized during the Clive tenure. ये सबसे बड़ी बात क्या नजर आता है? सिविल सिस्टम, सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, सिविल सर्विसेज को जो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट सामने नजर आता है, लॉर्ड क्लाइव के साथ में वो चीजें जाती हैं. एंड ही प्रोहिबिटेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फ्रॉम द अंडरटेकिंग ऑफ एनी प्राइवेट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट. व्हाट इज दैट? ही प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी काइंड ऑफ गिफ्ट. गिफ्ट का मतलब क्या होता है? द ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाय दिस टाइम. सो he did their effort over there. He did their effort over there, and it has proved somewhat, you can say, very much worthy. So this is the contribution of this person, and this is the what we can say capacity of the person. ये इस आदमी का क्या है? कैपेसिटी है या शक्ति है. ये फील होता है कि इस चीज को इसने कंट्रोल किया. तो आपको एमसीक्यू के जवाब के लिए इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर सवाल पूछा जाता है किस चीज को उसने किया, तो अंडरटेकिंग में इसने क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस को भी इसने स्टॉप किया. दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट. और देखते क्या है इसमें, आंग्ल मैसूर वॉर की जब बात करते हैं वो भी लड़ा जाता है, एंड रॉबर्ट क्लाइव को फिर से रिकॉल किया जाता है. इन द कोर्स ऑफ व्हाट वॉर एंड इंग्लिश वेयर डिफीटेड बाय द हैदर अली. और इस पीरियड में क्या देखते हैं? इंग्लिश को डिफीट मिल जाता है किससे? हैदर अली से. दिस इज अगेन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट. इसलिए इसके वर्चस्व को देखते हुए भारत में इसे बुलाया जाता है. दैट इज द पार्ट ऑफ देयर. ओके, सो ये जो चीज मैंने डिस्कस किया, इस चीज को अब मैं एक चीज क्लैरिटी कर दूं. हाउ यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट अंडर 360 डिग्री एंगल. अब 360 डिग्री एंगल पे इसको कैसे आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे? आप इसको कैसे इंट्रोस्पेक्ट करोगे? जो सबसे मेजर चीज नजर आती है वो क्या नजर आती है? रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है आपका. रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है. दिस इज वन पार्ट ऑफ दैट. सेकेंड थिंग क्या है? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना शुरू कर देते. तीसरी चीज क्या नजर आता है? ब्राइब कंडीशंस को, ब्राइब के पद्धति को, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार के गिफ्ट को मना कर दिया जाता. फिर क्या देखते हैं? जो वॉर हैपनिंग में कंडीशन नजर आती है उसमें भी उसे सफलता मिलती. तो कुल मिला के क्या कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी का जो इंपैक्ट नजर आता है, थीम नजर आता है, उसके अचीवमेंट भी है, उसके कंट्रीब्यूशन भी है, प्लस उसकी डेक्स्टरिटी क्या है, विशिष्टता क्या है. दैट इज व्हाई ही इज वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर देयर. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की शुरुआत होती है रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के आधार पर. दिस वे द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया was under his campaign, under his leadership, made the thing very much purposeful, and that continued up to the period of 100 years. और क्या देखते हैं? ये 100 साल तक कंटिन्यू हुआ. 100 साल का मतलब क्या नजर आता है? इवन up to the period of 1758, and it was up to the period of 1757. तो this angle, from this idea you should have to go through that. और इसी को हम लोग कहेंगे कि गवर्नर जनरल की जो भूमिका है इस रूप में इसको हम लोग लेकर के चले. ओके, नाउ कम टू अनदर फेसिट ओवर देयर. The second person was Lord Warren Hastings. He also contributed, you can say, for the British Empire is larger than life. His contribution was also very significant. अगर इसके contribution की बात करते हैं, इसकी सहयोगिता की बात करते हैं, इसकी विशिष्टता की बात करते हैं, it was very very purposeful part over there. And what is that? Governor Bengal was designated Governor General of Bengal. और पहली बार क्या नजर आता है?
ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन एमसीक्यू का हो सकता है बहुत आसानी से। क्या नजर आता है, पहली बार ये सवाल पूछा भी गया है और ये सवाल मैचिंग में भी पूछने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो यू शुड हैव टू बी प्रिपेयर रिगार्डिंग दैट एंड यू शुड हैव टू जॉट डाउन, पेन एंड पेपर निकाल करके बच्चों रहो। एंड आई मे आल्सो आंसर योर क्वेरी वॉट एवर यू आर फेसिंग एनी हिकअप्स ओवर देयर। Another important, he annexed Bengal, Bihar and Odisha. This is one of the significant part. He annexed Bengal, Bihar and Odisha. दो चीजें आती हैं, annexed Bengal, Bihar and Odisha. और इस क्वेश्चन का कनेक्शन जो कि यूपीएससी कहता क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी के हिसाब से इसके अप्रोच की वायबिलिटी क्या नजर आती है, तो इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूं। इसको देख के चलता क्या हूं कि जब सेपरेशन ऑफ बंगाल किया जाता है, when the separation of Bengal has taken place, जब बंगाल का विभाजन किया जाता है तो क्या देखा जाता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और इसको किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। अब सबसे बड़ी समस्या है, यहां से यूपीएससी क्वेश्चंस आपके पुट कर सकता है आसानी से, कि बंगाल विभाजन जब लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, उसमें भी क्या कारण था कि उसने बंगाल, बिहार और क्या कह सकते हैं, उड़ीसा को अलग किया, जिसे हम लोग कूच बिहार ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। अगर ये आपका बैकग्राउंड रेडी है, तैयार है, तो यू कैन डू ए कॉम्पेरेटिव एनालिसिस रिगार्डिंग व्हाट लॉर्ड कर्जन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यू कैन से, सेपरेशन ऑफ बंगाल। और 2021 के क्वेश्चंस में आप देख लीजिए लॉर्ड कर्जन पे ये सवाल पूछा गया है। ओके, नाउ बैक टू द सेम कंडीशन ओवर देयर। He started modern Western administration in India. सबसे बड़ी बात क्या नजर आता है, modern Western administration. What do you mean by modern administration? What do you mean by modern Western administration in India? Modern Western administration की जब हम बात करेंगे, what is that modern? What is Western? And another one is what, administration. You have to make clarity over there. मैंने बार बार कहा है 360 डिग्री एंगल पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडर्न वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन की जब विशेषता होगी, यू नो इट वेरी वेल, एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट, सर्विसेज। किस प्रकार से इसने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया। वेस्टर्न का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी, लॉफुल, बेस्ड ऑन व्हाट, लेजिटिमेसी। और मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत कब से होती है, since the beginning of industrial revolution, or law, rules, regulation where you can say regulated by that time, it was made on legitimacy, and that is called modern western education. इस प्रकार से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे। I think this must be clear to you. So you can't skip it out, the word, the languages which is used in, whether in NCERT, within the notes of exam-shala part of that, you can't ignore it. आप कभी भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एंड ट्राई टू डिकोड इट। एंड दीज आर द मेजर हिकअप्स। जो सबसे बड़ी बच्चों की समस्या क्या है, more than 50% कैंडिडेट्स नॉर्मली फेल टू डिकोड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन के क्रिटिकलिटी को नहीं समझ पाते, जिसके कारण क्वेश्चन, जाना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यू शुड हैव टू डेवलप योर अप्रोच। क्योंकि ये सेशन है पूरी तरह से डेडिकेटेड है, आपका अप्रोच क्या होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, आप एनालिसिस को भी किस प्रकार से कर सकते हो। तो ये इस सेशन की जो सबसे बड़ी विशेषता की बात होगी, ये बात होगी। नाउ कम टू अनदर फेसिट ओवर देयर, अनदर फेसिट रिगार्डिंग दिस वन, व्हाट वी कैन से इन दिस रिगार्ड, he entered into the business with the Egypt taken, or again this is the critical question you should have to keep in your mind. What is that? खास बात क्या है, he entered into the business with Egypt, तिब्बत, भूटान। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। इट इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। और दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। यूपीएससी सवाल पूछेगा, आप इस चीज को अगर स्किप कर जाते हो, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर यू। इसका मतलब है कि उसकी पॉलिसी में, खास कर करके वॉरेन हेस्टिंग की पॉलिसी में ये विशेषता थी, नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एक्टिविटी इन इंडिया, भारत में ही सीमित नहीं था, बल्कि भारत के पड़ोसी, ये सब जो देश दिख रहे हो आप, क्या है, ये अफ्रीका का सेक्शन है, तिब्बत का है, भूटान का है, ये भारत के पड़ोसी देश के साथ साथ इजिप्ट के साथ भी संबंध को दे लेंगे। He stopped annual pension of the Mughal emperor and reduced the pension of the Nawab of Bengal। फिर यूपीएससी सवाल कर सकता है, किस गवर्नर जनरल के तहत
जो पेंशनर थे बड़े बड़े नवाब, सब मुर्शिद कुली खां से लेकर करके आगे के नवाब ऑफ ढाका तक जो थे, सबों के पेंशन को रोका जाता है। तो उसके रोकने के पीछे कारण क्या था, कंडीशन क्या था, दिस थिंग यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे बड़ी भूमिका नजर आती है कि पेंशन को रोका जाता है। पेंशन के साथ साथ क्या देखते हैं, पेंशन के साथ साथ क्या देखते हैं, पेंशन के साथ साथ अदर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करते हैं। तो करप्ट ड्यूरिंग द हेस्टिंग पीरियड, हेस्टिंग पीरियड में करप्शन की प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थीम ओवर देयर। एंड कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक दूसरा प्रावधान भी लाया गया, जो आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट, ही इनिशिएटेड रोहिला वार। इसके काल में क्या रोहिला वार होता है, और एनेक्सेशन रोहिलखंड को भी अपने अधीन कर लिया जाता है। और नवाब ऑफ अवध विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, क्या देखते हैं, नवाब ऑफ अवध की मदद से खास करके रोहिला वार को भी जीता जाता है। दिस इज अगेन ए सिग्निफिकेंट पार्ट रिगार्डिंग दिस वन। देन ड्यूरिंग हिज टेन्योर एक्ट ऑफ 1781 केम, इस चीज को याद रखेंगे कि 1781 का जो अधिनियम आया वो काफी इंपॉर्टेंट था। उसके कंडीशंस क्या देखा जाता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर को चेंज किया जाता है बिटवीन गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वेयर एस्टैब्लिश। सबसे बड़ी बात नजर आती है, क्या नजर आती है, पावर का डिवीजन होता है। पावर डिवीजन वाज हैपेंड, पावर डिवीजन was happened। पावर डिवीजन की बात नजर आती है। दूसरी चीज क्या नजर आते हैं, पावर डिवीजन के बाद जो चीज मैंने डिस्कस किया है, पावर डिवीजन की बात आती है। पावर डिवीजन के साथ में क्या देखते हैं कि जुरिस्डिक्शन को भी बदल रहा है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट एंड कलकत्ता। और क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की भी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है यहां पे। इट इज व्हाट, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, अगेन दिस में बी द क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। देन क्या देखते हैं, पावर के डिवीजन की बात आती है, पावर डिवीजन। सो दिस वाज द मेजर अचीवमेंट ओवर देयर। तो जो मैंने थीम की बात कही है, थीम की मतलब क्या है कि पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के साथ में उसके कार्य हैं जो उसके साथ डिवीजन के साथ किया गया है। तो दिस अप्रोच यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। अनदर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थिंग, इसकी बात अगर चर्चा अगर करते हैं हम लोग, आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में खास कर करके। तो अनदर चीज क्या करती है, ही लेड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन 1775-82 फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ सलामी। ये कई बार सवाल पूछा भी गया है, मराठा के साथ हुई थी और जो उसको वहां पे सफलता मिलती है। इसी के बाद जो इंपॉर्टेंट आ जाइए, पिट्स इंडिया एक्ट को इनैक्ट कर दिया जाए। पिट्स इंडिया एक्ट की बातें कही जाती है, और पिट्स इंडिया एक्ट भी क्या है, सेकेंड एंग्लो, इसके साथ क्या देखते हैं, सेकेंड एंग्लो मराठा वार की बात आती है। इस पीरियड में क्या देखते हैं, हैदर अली का डेथ होता है, द फादर ऑफ यू कैन से टीपू सुल्तान, एंड मैसूर वाज डिफीटेड, और मैसूर का डिफीट यहां पे होता है। तो एक सफलता नजर आती है इसके साथ में, ये इसके अचीवमेंट के साथ मार्क किए जाते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ कुछ उसके अचीवमेंट भी हैं, उसको हम लोग कभी भी कदापि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अचीवमेंट भी क्या हुआ। क्योंकि सारे के सारे लोग, सारे के सारे गवर्नर जनरल, वाइसरॉय 100% कभी भी अपने, कहा जा सकता है कि उत्तरदायित्व पे खड़े नहीं उतर सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन द प्रोसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंटिन्यू बाय दैट टाइम। Another say during his tenure judicial murder of नंद कुमार in 1775, ये एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ जाती है। इसी के काल में जुडिशियल मर्डर हो जाता है नंद कुमार का। एंड नंद कुमार वाज ए क्रिटिक ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि क्या देखते हैं, ये बार बार क्रिटिक करते हैं किस पे, वॉरेन हेस्टिंग पे। और क्या देखते हैं, फॉल्स केसेस एंड सेंटेंस टू डेथ, और जिसके कारण क्या देखते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट आता है, इसकी वजह से सेंटेंस टू डेथ होता है। तो रामकुमार से सवाल हो सकता है कि किसके काल में, या रामकुमार की क्या भूमिका थी, ये सवाल अगेन यूपीएससी का हो सकता है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन हैव टू जॉट डाउन ओवर देयर। सो दिस अप्रोच यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, अनदर सिग्निफिकेंट थिंग रिगार्डिंग दिस वन, इसके साथ में जो अदर बात मैं करूं, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस वन, another important thing regarding this one, what is that, abolition of dual system।
कई चीजें डेवलप की हैं इस पीरियड में, थोड़ा सा मैं इस चीज को क्लियर करूं। वॉरेन हेस्टिंग के साथ में काफी डेवलपमेंट हुए हैं। एबोलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम को बार बार हिंदी में कहा जाता है द्वैत शासन प्रणाली, इसको मैं एलाबोरेट से बता दूं। एंड ये शुरू क्या किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाई द्वारा शुरू किया गया था द्वैत शासन पालन। इन द ड्यूअल हेस्टिंग abolished the dual system, and that had been established by them system. So the company had, you can say, diwani right to collect revenue, and nizam और निजामत और इंडियन चीफ्स had administrative authority. इस कंडीशन में ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी संज्ञा जो दी गई थी, कंडीशंस क्या था ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन? दो चीज नजर आती, एक चीज क्या है निजामत, और दूसरी चीज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो कहा जा सकता है दीवानी राइट, या कह सकते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी था इसका। इसमें होता था क्या, कंडीशंस क्या था कि सारे कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बना करके नवाब पे डाल दिए जाते थे, और कहा भी जाता था कि एग्जीक्यूट आप करोगे। यानी दूसरी भाषा में कहा जाए, कंधा किसी और का था, शोल्डर किसी और के थे, गन किसी और कंडीशन से यूज किया जा रहा था। दिस इज द सिग्निफिकेंट पार्ट। यानी जिम्मेवारी पूरी की पूरी नवाबों के ऊपर डाल दी गई, और जिम्मेवारी के साथ साथ कार्य अधिकार भी उन पर डापा गया, लेकिन प्रेशर किसका होता था? गवर्नर जनरल का होता था। इसका इंपैक्ट क्या नजर आता है, थोड़ी सी मैं बता दूं कि जितने भी कानून एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस के होते थे, किस पे था? नवाब के ऊपर था। तो किसान या फिर जिन लोगों से टैक्स की वसूली की जाती थी, वो नेचुरल है कि नवाब के प्रति उनमें रोष होगा या प्रतिरोध होगा। जबकि सेफ्टी पोजीशन में कौन होता था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते थे। इस कंडीशन से मुद्रा का दोहन, या कह सकते थे कि होते की व्यवस्था, लॉर्ड क्लाइव ने कंडीशंस जो की थी। तो अब देखते क्या है कि अब इसके काल में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस इस पीरियड में जो स्टार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात होती है। नवाब एनुअल अलाउंस, अब नवाब का कितना था अलाउंस? 32 लाख वाज रिड्यूस्ड टू 16 लाख। तो ये सारी काम किस चीज के लिए कर रहा है? ब्रिटिश सरकार को पंप अप करने जाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा मुद्रा का दोहन हो, ज्यादा से ज्यादा वसूली कर किसको दिया जाए? ब्रिटिश क्राउन को दिया जाए, और हिंदुस्तानियों की स्थिति रैक रेंटिंग स्टेट, बैड टू वर्स कंडीशंस प्रिवेल करनी शुरू हो जाती है यहीं से ही। तो यह सवाल किया जा सकता है कि किसके काल में जो एनुअल नवाब का जो कहा जा सकता है कि अलाउंस था, वो 32 लाख से घटा करके सीधे आधा कर दिया। तो दिस मे बी द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों आप इसको प्लीज नोट कर लो, एंड दिस अप्रोच यू हैव टू इनकलकेट, यू हैव टू डेवलप ओवर देयर। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, revenue reform. The revenue correction of, you can say, board of the revenue was set up under Calcutta. पहली बार क्या देखते हैं कि एक बोर्ड सेटअप होता है, कोई एक आदमी को एकाधिकार नहीं, एक बोर्ड सेटअप होता है और बोर्ड में मेंबर्स हैं कई, वो तय करते हैं कि करेक्शन कैसे होगा रेवेन्यू का, और किस प्रकार से वो क्राउन को प्रोवाइड किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ट्रेजरी वॉज मूव फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। सबसे बड़ी बात क्या नजर आती है, ये ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता क्यों ले जाया गया? ट्रेजरी को शिफ्ट करने का मतलब कुछ क्रिटिकल बात होती है ना, यूपीएससी सवाल कर सकता है। रीजंस क्या था भाई, फैक्टर क्या था कि ट्रेजरी को आप कहां से ले जा रहे हैं? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद वर्तमान समय में मुर्शिदाबाद की बात की, दिस इज बांग्लादेश। कहां ले जा रहे हैं आप? कलकत्ता ले जा रहे हैं। क्यों? Because for the safety purpose was what? Safety. Purpose was safety and monitoring. मुर्शिदाबाद क्या था? सबसे बड़ा पोर्ट ट्रेडिंग सेंटर था, या कह सकते हैं मसलिन प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सेंटर था, बहुत बड़ा पोर्ट सिटी था। लेकिन वहां से ले जाकर के कहां ले जाया जाता है? सेफ प्लेस है, इट इज कलकत्ता। कलकत्ता वाज द सेफ प्लेस ओवर हियर। तो दिस इज अगेन अ क्रिटिकल थिंग एंड यू शुड हैव टू थिंक ओवर देयर। और इस प्रकार से यूपीएससी के सवाल की पॉसिबिलिटी बनकर के निकल आती है। ट्रेजरी का कहा जा सकता है माइक्रो लेवल पे इसको डिजाइन किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है। दिस इज द पार्ट ओवर देयर। द ब्रिटिश कलेक्टर वेर अपॉइंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड अकाउंटेंट जनरल वाज आल्सो अपॉइंटेड। अब सबसे बड़ी बात क्या नजर आती है, एक नई चीजें सामने आती है।
administrative mechanism were changed. What was that? It is कलेक्टर की बात होती है. Now conditions क्या नजर आती है? कलेक्टर की बात करते हैं हम लोग. Condition is what? कलेक्टर की बात करते हैं. What is that? Nawab's annual allowance and tribute. Then condition is that revenue board setup. अब revenue board of revenue. अब देखेंगे क्या हम लोग? What is the criticality? और यूपीएससी सवाल क्या करता है? सवाल का रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम से क्या है? आपको अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा. जो कहानी आपको लगता है कि ये पास्ट कहानी है, नहीं. दिस इज द बेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ सिस्टम. लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मुलेशन का बेस है. क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले 200 साल तक जब ब्रिटिश शासन ने शासन पद्धति किया, वो सिस्टम में पूरी तरह से एकस्टम्ड हो गए थे. और एकस्टम्ड होने के बाद वो प्रथा चल पड़ी थी, जिसके कारण जब भारत का संविधान, जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तो बहुत सारे तत्वों को उसमें सम्मिलित किया गया, लागू किया गया. इसीलिए इसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड या बेस यहां से निकल करके आता है. तो कंडीशंस क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज सेटअप एट कलकत्ता एंड ट्रेजरी मूव फ्रॉम मुर्शिदाबाद की बात अभी मैंने डिस्कस किया आपसे. और ब्रिटिश कलेक्टर वेयर अपॉइंटेड टू ईच डिस्ट्रिक्ट एंड अकाउंटेंट जनरल वाज आल्सो अपॉइंटेड. तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है? सबसे बड़ी बात क्या निकल करके आती है कि जो रेवेन्यू कलेक्टर की बात करते हैं, जस्ट ए मिनट, रेवेन्यू कलेक्टर की बात करते हैं, तो एक पोस्ट ऑफ कलेक्टर. दूसरी चीज क्या है? अब अकाउंटेंट जनरल की बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं ये पार्ट आगे चल के क्या देखते हैं, रेवेन्यू के अकाउंटेंट को, जिसको वर्तमान समय में काक कहें, ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, कंट्रोलर. ये एक ओरिजिन हो रहा है, एक एवोल्यूशन हो रहा है. कलेक्टर क्या है? रेवेन्यू इंचार्ज. और हमेशा याद रखना, अगर यूपीएससी आप क्वालिफाई करते हो, ईश्वर करे क्वालिफाई करो, आपका जो पोस्ट होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, द मेन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज व्हाट? रेवेन्यू कलेक्शन. ही इज सपोज टू बी द बिग रेवेन्यू ऑफिसर. He used to do all the activity for the development of the district town. And in other word, you can say in the आने वाले डेज में इसका नाम हो सकता है बिजनेस डेवलपमेंट कलेक्टर या कमिश्नर के नाम भी दिए जा सकते. तो अभी भी अगर आप लोगों का सबसे पहला उत्तरदायित्व एक जिलाधिकारी का होगा, रेवेन्यू का पूरा के पूरा वो इंचार्ज होगा. सारी के सारी ट्रेजरी का साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा. जान जाइए इस प्रथा की शुरुआत कहां से हो रही? वहीं से हो रही. प्लस अकाउंटिंग का सिस्टम भी अलग हो रहा है. तो पहली बार दिस इज कॉल्ड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने क्या कहा कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दो. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात क्या है? रेवेन्यू सिस्टम को अलग कर दो. दूसरी चीज क्या है? अकाउंटेंट ऑडिटर सिस्टम को भी अलग करो. दिस इज द डायनामिक्स ऑफ व्हाट? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सो इट वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश. ओके, नाउ कम टू अनदर फेसिट ओवर देयर. Another reason, and this is very again critical, Calcutta became Bengal's capital. अब सबसे बड़ी बात क्या नजर आता है? ये आपका यूपीएससी का एमसीक्यू का सवाल है या मैचिंग सवाल होगा. क्या होगा? पहली बार कलकत्ता राजधानी बन जाती है बंगाल की. दिस इज वेरी वेरी नोटिसेबल पॉइंट इन 1772. And British collector were appointed for each district and accountant general for also appointed. अब क्या देखते हैं? अकाउंटेंट जनरल पहली बार आ जाता है. अब क्या देखते हैं? हर एक डिस्ट्रिक्ट को किसके अंतर्गत दे दिया गया है? एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. और याद रहे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फिर एकमात्र सबसे बड़ा प्रोफेशन या सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या है? रेवेन्यू को कलेक्ट करना. और यहां से क्या होता है? रेगुलेशन क्या शुरू होता है? अकाउंटेंट जनरल वाज आल्सो अपॉइंटेड. Unreasonable fine were done away with the restrictions were placed under the rising rent. अब इस सबसे बड़ी बात है करप्ट प्रैक्टिसेस. जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेस भी शुरुआत हो जा रही है यहीं से ही. This is one of the reasons for the discontentment of Indian, you can say, people over there. अब बहुत सारी ऐसे चीजों पे फाइन लगाया जा रहा है जो फाइन किसी भी कंडीशन में मान्य नहीं था. क्योंकि जिम्मेवारी दे दी जाती है कलेक्टर को कि ज्यादा से ज्यादा धन की उगाही आपको करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा धन की उगाही आपको करनी होगी. दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. ओके,
तो थीम के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की बात करते। नाउ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट? जुडिशियल सिस्टम। एंड जुडिशियल सिस्टम यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड, अपने को पूरी तरह से अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में न्याय व्यवस्था भी होगी, और ये न्याय व्यवस्था पुरानी एंशिएंट काल की न्याय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एंशिएंट काल की जो व्यवस्था थी धर्मशास्त्र पे आधारित कंडीशंस था, जिसके कारण हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी। लेकिन अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात क्या है? हर चीज न्यायप्रद होगी, हर चीज का जुडिशियस डिसीजन होगा, क्रिटिकल आइडियाज होंगे, व्यूज होंगे, पक्ष विपक्ष की बातें भी कही होंगी। तो दैट इज व्हाई द जुडिशियल सिस्टम आल्सो केम टू प्रोमिनेंस ओवर हियर। अब क्या देखते हैं इस कंडीशन में? न्यायिक व्यवस्था की भी स्थापना होती है। दिस इज अगेन ए क्रिटिकल क्वेश्चन, यू हैव टू नोट इट डाउन रिगार्डिंग दिस वन। जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल पावर ऑफ द जमींदार्स वेयर अबॉर्ड। अब देखिए सबसे बड़ा न्यायिक व्यवस्था क्या था? जुडिशियल पावर किसके हाथ में थी? नेटिव जमींदार के हाथ में थी। उस चीज को क्वैश कर दिया जाता। धीरे धीरे क्या देखते हैं? नवाबों की शक्ति देसी रियासतों की शक्ति में रिडक्शन, कंट्रोल मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। तो सबसे मेजर चीज क्या नजर आता है? व्हाट इज दैट? जमींदार्स वेयर एबॉलिश्ड। जुडिशियल पहले अथॉरिटी किसको थी? जमींदार को थी। इसके पावर को खत्म किया जाता। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड, और यहीं से शुरू होता है दीवानी और फौजदारी कोर्ट, जो वर्तमान समय में भी प्रेजेंट है। कहा जाता है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका रिलेवेंस प्रेजेंट टाइम में क्या है। तो सवाल अगर पूछा जाता है कि ओरिजिन किसके काल से हुआ, वो व्यक्ति कौन था, किस काल से शुरू हुआ, किस गवर्नर जनरल के काल से हुआ, यू कैन आंसर इट वेरी वेल वे। तो व्हाट इज दैट? Criminal and what is that? Civil and criminal courts were abolished and 2 appellate courts were established at Calcutta. और appellate court की परंपरा अभी भी है। Permission, with the permission of other courts, there are also the system of appellate court formation is prevailing in our country. In our recent political system and constitution, appellate court की परंपरा अभी भी वर्तमान समय में विद्यमान है। तो इसको भी ध्यान रख करके आप काम करेंगे। Another significant thing regarding this one, for civil सदर दीवानी अदालत and for criminal सदर निजामत अदालत। अब देखिए दो चीज, सदर का टर्म का मतलब है सदर का मतलब हेडमैन, निजामत का मतलब क्या कहते हैं? जो भी क्रिमिनल केस होगा निजामत होगा, और दूसरी सदर दीवानी का मतलब सिविल केस। कहने का उद्देश्य क्या है? अगर आप कहते हैं कि सिविल और फौजदारी एक क्या है, सिविल केस का मतलब क्या हुआ? केस रिलेटेड, मेजोरिटी केस कंसर्न विद द लैंड। जो भी केसेस हैं वो लैंड से, भू संबंधी जो भी प्रश्न है, सिविल के तहत ये चीज आ जाता है। और जो क्रिमिनल है, इमीडिएट जो भी चीज कहा जा सकता है हत्या से संबंधित है या क्राइम से संबंधित है, दैट इज डील विद द, यू कैन से दैट फौजदारी अदालत। अभी भी ये प्रथा भारत में विद्यमान है, ये चीज प्रचलित है। तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे कि जुडिशियल सिस्टम कब से आ जाता है, जुडिशियल रिफॉर्म की व्यवस्था कब होती है। नाउ मुस्लिम वेयर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द लॉ इन द कुरान एंड हिंदूज अकॉर्डिंग टू द हिंदू। अब यहां से यूपीएससी का सवाल उठेगा। यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, व्हाट वेर द रीजंस बिहाइंड दैट। इसके पीछे कारण क्या था, तथ्य क्या था? तो इसके पीछे तथ्य क्या था, कारण क्या था? क्योंकि हिंदुओं के या मुसलमानों के किसी भी धार्मिक मामले को ठेस न पहुंचाया जाए, उनको अच्छे से रिव्यू किया जाए, देखा जाए। इसलिए इस कंडीशंस को, चूंकि दोनों के दोनों जो कहा जाता है रिलीजन के लोग थे, दोनों के दोनों संस्कृति के लोग थे, वो अपने कहा जा सकता है कन्वेंशनल कुरान या हदीस के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं भगवत गीता या उपनिषद के आधार पर उनके कानून का निर्माण चीजें जैसे हुई थी। तो इस आधार पर यह चीज रखी गई कि मुसलमानों को मुसलमान के धर्म विधान के अनुसार, हिंदुओं को हिंदू के धर्म विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था की जाए। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट पार्ट यू शुड हैव टू रिमेंबर ओवर देयर। ए कोड ऑफ हिंदू लॉ यू कैन से प्रिपेयर्ड बाय हिंदू पंडित्स एंड ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश। होता क्या था कि जो हिंदू लॉ था, कोड था, वो पंडितों द्वारा तैयार किया जाता था, फिर उसका ट्रांसलेट करके अनुवाद कर करके दिया जाता था कि ये प्रावधान है, ये समस्याएं होती हैं, इसके साथ ये प्रावधान है। उसी तरह मुसलमानों का कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी कहा जा सकता है रिलीजियस कानून जो शरीयत कुरान से बनाया जाए, उसको भी ट्रांसलेट करने की व्यवस्था थी। और
आगे क्या देखा जाता है इस पीरियड में और भी एक्टिविटी, ही आल्सो केम डाउन हेवीली टू द डॉकेट्स इन बंगाल। जिस प्रकार की कहा जा सकता राहजनी की व्यवस्था या रॉबरी की व्यवस्था थी, दैट वाज आल्सो द कंडीशन एट दैट टाइम। इसके पीरियड में एक जो मेजर डेवलपमेंट होता है दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम जुड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का एकमात्र उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा धन की उगाही की जाए, प्रॉफिट अपने भी कमाया जाए, चूंकि एक संगठन था करीब करीब 100 कंपनियों का, और साथ ही साथ अपने कमाने के साथ साथ वो क्राउन को भी साथ में दे, जो उनका एग्रीमेंट था। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी भी चीजें नजर आ रही थी, कुरीतियां या कमियां, जिससे करप्ट प्रैक्टिसेस भी था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाले भी आ रहे थे, करप्ट प्रैक्टिसेस की प्रथा यहाँ पे प्रिवेल कर रही थी, लेकिन फिर उसको एक लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुद्रा का दोहन अगर करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है, तो वो तो दे रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा का दोहन अपने करके करप्ट प्रैक्टिसेस में अधिकारी ज्यादा कमा रहे हैं। वो भी एक उद्देश्य था किसका, ब्रिटिश क्राउन का। नाउ द ट्रेडिंग रेगुलेशन, हेस्टिंग अबॉलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक which were misused by the company officials and traders earlier। दस्तक का मतलब क्या होगा, आप इस चीज को अच्छे से समझो। What do you mean by दस्तक? दस्तक का मतलब क्या होता है, परमिट। अब परमिट का मतलब क्या होता है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको दस्तक दिखाना होगा, परमिशन ऑफ लेटर दिखाना होगा। इसमें काफी ज्यादा कहा जा सकता है कि घूसखोरी या काफी ज्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ गया था। तो एक ऐसी परंपरा की भी शुरुआत इसी काल में होती है, इसी काल में होती है ऐसी परंपरा की शुरुआत। दस्तक का कंडीशन नजर आता है, जस्ट अ मिनट, दस्तक का कंडीशंस बढ़ता है उस कंडीशंस में। जस्ट अ मिनट, जस्ट which were misused by the company officials and traders earlier on. He enforced uniform tariff 2.5% of India and the foreign goods। अब क्या करता है इसके पीरियड में, एक बहुत बड़ा सुधार क्या होता है, एक 2.5% का टैरिफ को फिक्स कर दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता इस कंडीशंस में नहीं हो पाए। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट होता, एंड प्राइवेट ट्रेड बाय द कंपनी ऑफिशियल वाज रेस्ट्रिक्टेड। अब किया जाता है कि जो प्राइवेट ट्रेड कंपनी कर रहे थे उसमें भी रेस्ट्रिक्शन डाला जाता है, तो यहीं से मिसयूज की शुरुआत होती। तो दिस इज द कंडीशन एट दैट टाइम, और ये सारी चीजें इस काल में होती है। तो जुडिशियल रिफॉर्म से लेकर के ट्रेडिंग रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। द पीरियड वाज 1786 टू 1793। ये कार्यकाल लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कंट्रीब्यूशन बहुत लंबे समय तक, या कहा जा सकता है बहुत लंबे समय तक और बहुत लंबे कार्य तक पूरे तरीके से या पूरे अधिकार के रूप में आगे भी चलाया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब बात करेंगे, ही वॉज फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या नजर आती है जब थीम की बात करते हैं, ही वॉज नोन एज, आइडेंटिफाइड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और रिफॉर्म फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके आने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको फिल्टर कर करके उसकी अनियमितता को, उसके जो कंडीशंस हैं, जो रेगुलेटिंग सिस्टम जा रहा है उसको रेगुलेट किया जाए, और जो करप्ट सिस्टम है उसको क्या किया जा सकता है, उसको डीरेगुलेट किया जाए। उसको क्या किया जा सकता है, उसको किसी भी कंडीशंस में डीरेगुलेट किया जाए। ये एक व्यवस्था उस पीरियड में या उसके सामने में नजर आ जाती है। तो दैट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर देयर। ये एक सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट नजर आ जाता है इसके काल की या इसके कार्यकाल की बात जिसे कहेंगे हम लोग। Another significant part regarding this one, what we can say, he was the father of modern police administration in India। भारत में पहली बार जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था डेवलप होती है इस काल में डेवलप होती है। एंड ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ DSP, और पहली बार DYSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट किसी पीरियड में क्रिएट किया जाता है। You can say that you can't forget about that Lord Cornwallis, and he believed that the separation of power, therefore he deprived the district collector of judicial power and created a new post
डिस्ट्रिक्ट जज। होता क्या था इस पीरियड में, करप्ट प्रैक्टिसेस या कहा जा सकता है पावर डाइवल्ज हो रहा था, पावर डाइल्यूट हो रहा था। इसलिए क्या किया इसने, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का पद अलग कर देता है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का अलग पद कर देता है और साथ ही साथ कलेक्टर का पद अलग होता है। तो क्या होगा, जो पहले से जो चीज डाइल्यूट नजर आ रहा था, सेग्रीगेशन ऑफ पावर एंड फंक्शनिंग नहीं था, वो चीज पहली बार इसके पीरियड में ये चीज सामने आ जाती है। दिस इज सिग्निफिकेंट फीट, यू शुड हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। Another important thing regarding this one, he also carried out gradation of court। और पहली बार क्या देखते हैं, जो कोर्ट का ग्रेडेशन करना। कोर्ट का ग्रेडेशन का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद क्या देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट है, फिर क्या देखते हैं कि टॉप ग्रेड का होगा, उसके नीचे का, यानी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही जाती है। दिस मैकेनिज्म वाज आल्सो केम टू प्रोमिनेंस बाय दिस टाइम। ही प्रपोज कार्नवालिस कोड, और ये सबसे पहली बात क्या देखते हैं, कार्नवालिस कोड की स्थापना की। ही एस्टैब्लिश्ड कार्नवालिस कोड, ये एक बहुत बड़ी चीज सामने नजर आती है। एंड दिस वाज 1793 इनकॉर्पोरेटिंग सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म, और इसके तहत क्या देखते हैं, बहुत सारी जुडिशियल रिफॉर्म की व्यवस्था इस काल में की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। दिस इज अगेन ए सिग्निफिकेंट ओवर देयर। ही कोडिफाइड आईपीसी सीआरपीसी। जो सबसे बड़ी बात क्या नजर आती है, क्या नजर आता है, पहली बार क्या नजर आता है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी जो अभी वर्किंग हो रहा है इंडियन पुलिस की जो वर्किंग हो रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन सीआरपीसी। मतलब क्या है, सेग्रीगेशन दिया, ये आजादी देती है कि पुलिस के प्रोसीजरल सिस्टम में कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम या सिविल लॉ चीजें डाइवर्ज नहीं हो, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाए। उसी के बेसिस पर जो हम लोगों का भारत का भी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो पूरी तरह से उसी चीज पे आधारित है, और इस चीज को भी याद रखेंगे। Another important thing regarding the revenue and civil administration and separation of revenue and civil administration को अलग कर दिया जाता है। revenue administration and civil administration का मतलब क्या हुआ, जो financial services अभी वर्तमान समय में है, they look after the conditions regarding taxes and other activities over there, and the civil administration law and order, then maintaining the district administration over there, it is the role of district magistrate and collector is there. So the separate department of the finance, the separate department of the revenue, these were different at that, deferred, or you can say created at that time. This is the significant thing and possibility of asking the question over there. Another significant thing has taken place, Anglo-Mysore War. Anglo-Mysore was followed by Treaty of Srinagarpatnam। इसके काल में क्या होता है, एंग्लो मैसूर वार भी होती है। दिस इज द मेजर पॉइंट ओवर देयर। देन इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, दैट इज जमींदारी सिस्टम इन बंगाल, बिहार एंड यू कैन से बिहार, एंड इट वाज वर्स्ट मेजर टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे वर्स्ट मेजर कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। इसको समझ लो, परमानेंट सेटलमेंट। दिस इज द पीरियड इज नोन एज 1793। एक चीज बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं बता दूं, अब तक भारतवर्ष में जमीन भूमि कभी भी खरीद बिक्री का सामान नहीं थी। लैंड वार नेवर बीइंग ए सेलेबल कमोडिटी, यू कैन से बिफोर 1793। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट करने के बाद क्या देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जमीन को खरीद बिक्री का सामान बना दिया गया। And till the historical events, it was the worst measure of, you can say, Lord Cornwallis। रीजन क्या था, रीजन क्या था कि अगर टैक्स पे नहीं कर पा रहे हो तो सेठ साहूकार इंटरेस्ट पे पैसा दे करके जमीन को जब्त करते हैं, और फिर होता क्या है, बिचौली के कारण इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, और उसको सेल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता था। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल का पूछा जाता इसके पीछे मोटिव क्या था, योर आंसर शुड बी टू अर्न स्क्वीज मोर एंड मोर मनी टू द इंडियंस ओवर देयर, और हिंदुस्तानियों से जितना हो सकता था ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू की वसूली की जाए। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशंस ओवर देयर। और इस पीरियड से क्या देते हैं, जमींदारी सिस्टम और बंगाल बिहार। और सबसे ज्यादा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या कारण था कि ये बंगाल बिहार, अब कंडीशन अगर पूछा जाए कारण क्या था कि ये बंगाल बिहार में ही एस्टेब्लिश क्यों किया गया,
इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है, आगे मैं डिस्कस करूंगा भी, अगर मैं आगे मैं डिस्कस भी करूंगा, वो कंडीशंस क्या नजर आता है। ये पूरा के पूरा जो क्षेत्र था बंगाल बिहार का था, ये नॉर्दर्न इंडिया के ईस्टर्न पार्ट का क्षेत्र था, जहां पे लैंडेड मैग्नेट्स होते थे, पैदावार फसल बहुत ज्यादा होती थी। दिस वाज द कंडीशन एट दैट टाइम। ये सबसे बड़ी बात सामने नजर आती, सबसे ज्यादा जो कहा जा सकता है कि पैदावार जैसी चीजें इस काल में होती थी। दैट वाज द फैक्टर एट दैट टाइम, दैट वाज द फैक्टर एट दैट टाइम। ओके, 28 के बाद 29, यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। अब क्या देखते हैं कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव, बाय दिस टाइम व्हाट वाज हैपन, इट इज यूरोपाइजेशन। यूरोपाइजेशन किस चीज का होता है? पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का यूरोपाइजेशन होता है। और सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंट्रोडक्शन की जाती ही एस्टैब्लिश ए परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट विद द क्लास रेवेन्यू कलेक्टर, जमींदार एंड जमींदारी राइट। अब क्या करता है ये? परमानेंट सेटलमेंट कर देता है कि भैया इतना पैसा मुझे चाहिए ही। अगेन इट इज एक्सप्लॉयटेशन। देयर वर नो पॉलिसी एट दैट टाइम इफ द क्रॉप इज गोइंग टू बी फेलियर। अगर क्रॉप फेलियर होता है तो भाई उसकी मदद कौन करेगा? तो कंडीशंस क्या आता है? क्रॉप फेलियर एक रेगुलर प्रैक्टिस था नेचुरल कैलेमिटी का। इस अंतराल में, इस व्यवस्था में क्या देखते हैं, ये चीजें पूरी तरह से रैक रेंटिंग स्टेज में पहुंचा देती हैं जमींदारों को। और दैट इज फाइनली क्या होता था? ऑक्शन सेल होकर के ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश सरकार के पास पैसे आते। सारे मैकेनिज्म को तो ठीक किया इन्होंने, लेकिन जो सबसे बड़ी त्रासदी भारतीयों के लिए हो जाती है, लैंड बिकेम ए परमानेंट, यू कैन से सेलेबल कमोडिटी पार्ट ओवर देयर। तो मोटिव समूह का इंटेंशन क्या है? हिंदुस्तानियों से ज्यादा वसूल किया जा सके। दैट इज द सोल मोटिव बिहाइंड दैट। ओके, एंड परमानेंट सेटलमेंट की बात मैं थोड़ा सा किया था, फिर आगे कर देता हूं। कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड बंगाल एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। अंडर दिस सिस्टम जमींदार लैंडलॉर्ड्स वर मेड ओनर्स ऑफ द लैंड। अब क्या देखते हैं? जमीन की अब मालिकाना मिल जाता है, क्योंकि बिक्री करोगे, टैक्स नहीं दे पाओगे तो मालिकाना मिलेगा, पैसे दोगे बदले में। फार्मर्स वे रिड्यूस टू स्टेटस टेनेंट। अब क्या देखते हैं? जितने भी किसान थे वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं? मुलाजिम हो जाते हैं, टेनेंट्स हो जाते हैं, उनकी जमीन छिन जाती है। और फिर वो क्या करते हैं? अपनी ही जमीन में खेती किसके आधार पे करते हैं? टैक्सेशन देके, रेवेन्यू देने के बाद करते हैं। तो दिस लेड टू द पीजेंट इन अ रैक रेंटिंग स्टेज। सबसे बुरी अवस्था में किसानों को पहुंचा देते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, द जमींदारी हैड टू पे। अब देखिए क्या है, जमींदार हैड टू पे 89% टू द लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश एंड रिमेनिंग वॉज फॉर हिम। अब सोचिए, अगर 90% आप दे रहे हो, किसको? ब्रिटिश को, तो अपने पास आप रखोगे क्या? वॉट यू कैन अर्न ओवर देयर, आप उसे वसूली क्या कर सकते? दिस वे इट वॉज ए हार्श कंडीशन एंड ट्रीटमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन ओवर देयर। और बच्चे ये ध्यान रखो, इस कंडीशन में सवाल पूछा जा सकता है। आप देखो ऑटोमेटिकली अगर 89% अगर रेवेन्यू आप दे दें, बचेगा क्या? अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर ए टर्म। कंडीशन क्या है कि 10 साल तक इस तरह से ये प्रोग्राम करेंगे। 10 साल का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार को 10 साल का प्रीमियम रेडी हो गया, दे कैन प्लान ओवर देयर। और इसके आधार पे क्या देखते हैं? ब्रिटिश सरकार अपनी प्लानिंग कर सकता था, क्योंकि 10 साल तक ये टैक्सेशन लेगा। और इस कंडीशंस में क्या देखते हैं कि द सिचुएशन वाज बैड टू वर्स फॉर द पीजेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड द सिस्टम एक्सेलरेटेड ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। और इसके लिए सबसे बड़ी बात नजर आती है, जो आगे मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। इट वॉज हैपन एट दैट टाइम। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है भारत से ज्यादा पैसे की चीजें की जाए। हो गया?
हो गया ना? कल सेकंड पार्ट कर दिया गया क्या? हैं? अभी बोल दें। हेलो फ्रेंड्स, द रेस्ट ऑफ द पार्ट चूंकि आपके लिए इट वाज अलॉटेड फॉर यू कैन से 1 hour, so the next part will be finished tomorrow. Okay, so what you feel, what is your observation, and how did you get, you can say, this part over there strategy, सारी चीज को बताओ, फीडबैक दो, एंड जरूर लाइक करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो एग्जामशाला को। लेकिन आपका व्यू, आपके कमेंट हमें जरूर चाहिए, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच एग्जामशाला। जय हिंद।